Okay, take down this question as the homework. The values of liquid limit, plastic limit, and shrinkage limit of a soil were reported as below. WL liquid limit is 60%, plastic limit is 30%, and shrinkage limit is 20%. If a sample of this soil at liquid limit has a volume of 40 cc and its volume measured at shrinkage limit was 23.5 cc, सेम है. इस टाइप का प्रॉब्लम दो तीन प्रॉब्लम आज कर चुके हैं हम. Volume change. Determine the specific gravity. What is its shrinkage ratio and volumetric shrinkage? You please do it. You do it, please. This is also same data is given as 9th problem. Also, you can do it. That you will take it. This also homework, but in the notes itself. So only one problem, 8th is left. That you take down now. I will do it. This is a little bit difficult also. A sample of dry soil. Please take down this question. A sample of dry soil. A sample of dry soil. Dry soil is there. A sample of dry soil is coated with a thin layer of paraffin. A chemical is there here. So whatever the soil is there, it is coated with a layer of paraffin and has a mass of 460 grams. मतलब ये सॉइल का पैराफिन के साथ मिला के मास जो है वो 460 ग्राम्स है. यहाँ दो चीजें हैं. सॉइल ड्राई है, मतलब वाटर तो है नहीं, लेकिन वाटर की जगह क्या है यहाँ पर पैराफिन है, और पैराफिन और ड्राई सॉइल का टोटल मास है 460 ग्राम्स. It displaces 300 cc of water when immersed in it. मतलब अगर से हम इस सॉइल को पानी में डाल देंगे तो वो 300 cc वाटर डिस्प्लेस होता. मतलब इसका वैल्यूम 300 cc है, ये समझना. वो डायरेक्टली नहीं बोला आपको कि इसका वैल्यूम इतना है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल रहा हूं. इट डिस्प्लेसेस 300 cc ऑफ वाटर व्हेन इमर्स्ड इन इट. लिख लो क्वेश्चन प्लीज. A sample of dry soil is coated with a thin layer of paraffin and has a mass of 460 grams. A sample of dry soil is coated with a thin layer of paraffin and has a mass of 460 grams. 460 grams. It displaces 300 cc of water when immersed in it. The paraffin is peeled off, मतलब निकाल दिया उसको पैराफिन को. The paraffin is peeled off. Peeled मतलब निकालना. Peeled उसको बोलते हैं जब आप सरफेस निकालते या सतह निकाल सकते. पैज है, पैज को आप कट करके एक एक लेयर निकाल लेना, उसको पील बोलते, पीलिंग बोलते हैं उसको, मतलब लेयर्स में निकालना. The paraffin is peeled off, मतलब सारा पैराफिन निकाल दिए. And it is found to be 9 grams. टोटल मास 460 है, उसमें पैराफिन का मास है 9 ग्राम्स. हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9. पैराफिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9. याद रखो, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई है इसका. यूनिवर्सिटी में शायद ही पूछेगा ऐसा, लेकिन पूछ भी सकता है. सरफिरा कोई क्वेश्चन पर सेट करा तो पूछ भी सकता. द पैराफिन इज पील्ड ऑफ एंड इट इज फाउंड टू बी 9 grams. Having specific gravity 0.9. Having specific gravity 0.9. A sample of dry soil is coated with a thin layer of paraffin, and has a mass of 460 grams. It displaces 300 cc of water when immersed in it. बार बार लिखा रहा हूं मैं आपको, लिख लो क्वेश्चन को. The paraffin is peeled off and it is found to be 9 grams.
हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, मतलब 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल का नहीं है, ये पैराफिन का है. What is the wide ratio of the soil? Small e is how much? If the specific gravity of particles is 2.65, soil का specific gravity 2.65 है और paraffin का 0.9 है. What is the wide ratio of the soil? If the specific gravity of the particles is 2.65, what is its porosity? What is its porosity? उसका porosity कितना है? What is its porosity? So please do it. Porosity निकालो, that is N. Wide ratio निकालो, E. करो प्लीज. थोड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन, तो लिख लो आप, मैं करता हूं. You take down the question at least. क्लियर? हाँ, देखो तो सॉइल है, टोटल सॉइल का मास 460 ग्राम्स है, उसके साथ पैराफिन है, पैराफिन का मास जो है 9 ग्राम्स है और पैराफिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है. तो हमको सॉइल का वाइड्स रेशियो निकालना है. तो देखिए मास ऑफ ड्राई सॉइल विद पैराफिन 460 है, पैराफिन का मास 9 ग्राम्स है, तो मास ऑफ ड्राई सॉइल इज 460 माइनस 9, 451 ग्राम्स. ये तो बहुत सिंपल है, यहां तक मालूम है आपको. सो मास ऑफ सॉइल इज 451 ग्राम्स, इजंट इट? उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल विद पैराफिन 300 सीसी. आप बोलेंगे सर ये वॉल्यूम कैसा आया? तो उसमें क्लियरली मेंशन किया इतना वाटर डिस्प्लेस होता है, इसका मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उतना जितना डिस्प्लेस होता उतना ड्राई वॉल्यूम का वॉल्यूम है ड्राई सॉइल का, इट इज 300 सीसी. तो आपको मास मिल गया ड्राई का और वॉल्यूम मिल गया विथ पैराफिन, विथ पैराफिन. अब हम वॉल्यूम ऑफ पैराफिन निकालेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन का फॉर्मूला है, याद रखो, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के डेफिनेशन से निकाले थे, मास ऑफ पैराफिन इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पैराफिन इनटू रो डब्ल्यू. ये कैसा आता मुझे पूछो आप, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटेल में पढ़ो, वहां सब समझा चुका हूं मैं आपको. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रो एस बाय रो डब्ल्यू. यहाँ पर रो एस मतलब क्या होता है देखो, तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन इज इक्वल टू मास ऑफ पैराफिन इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू रो डब्ल्यू. तो मास ऑफ पैराफिन कितना है? 9 ग्राम्स है. स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 0.9 है, इनटू 1, तो 10 सीसी. सो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन इज 10 सीसी. वॉल्यूम ऑफ पैराफिन इज 10 सीसी. अच्छा, टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम 300 है, पैराफिन का 10 निकाल दो, तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इज 290 सीसी. तो मास ऑफ ड्राई सॉइल 451 है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल 290 है. ये दोनों निकालो, लिख लो प्लीज. टेक डाउन दिस मच फर्स्ट. मास ऑफ ड्राई सॉइल निकालो, वो तो बहुत सिंपल है, टोटल मास में से पैराफिन का निकालो, मास ऑफ ड्राई सॉइल मिल गया आपको 451. उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पैराफिन निकालो, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ पैराफिन निकालो 290 सीसी. तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इज 290 सीसी. प्लीज टेक डाउन. वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इज 290 सीसी. लास्ट मिनट में सब लोग आते बस है अटेंडेंस के लिए. आपको अटेंडेंस मिले तो बड़ा सर्टिफिकेट मिले जैसा. तो जो गलती कर रहे हैं आप, अटेंडेंस में बिल्कुल लिबरल हूं, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. सो मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली एंड अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट. इस पे आपको जरूरत ही नहीं है. और अगर से आप इंटरेस्ट नहीं बताए तो टीचर का भी इंटरेस्ट जाता.
तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल इज 300 माइनस 10 290 सीसी। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के लिए भी सेम फॉर्मूला, मास ऑफ सॉइल इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू रो डब्ल्यू। मास ऑफ सॉइल इज 451, specific gravity is 2.6 into 1, so volume of solids is 170.19 cc. Volume of solids is 170.19 cc. अब देखिए टोटल ड्राई सॉइल 290 का है, उसमें से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स 170 है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कितने मिलते हैं आपको? वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स। सो टोटल वॉल्यूम 290, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स 170.19 है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इज 119.81 cc. Volume of whites is 119.81 cc and whites ratio का definition है volume of whites by volume of solids 119.81 by 170.19, so whites ratio is 0.704. porosity is given by E divided by 1 plus E, ये substitute करो, you will get porosity also. तो इतना सब भी बहुत इजी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको कौन सा वैल्यूम कैसा निकालना ये क्लियर आना चाहिए। जो पैराफिन यूराफिन डाल के आपको कंफ्यूज करता, ये इस टॉपिक का प्रॉब्लम तो है नहीं, ये पिछला टॉपिक का प्रॉब्लम है, लेकिन इन दिस वे इट इज देयर। प्लीज टेक डाउन। सो दिस कंप्लीट्स द सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, दैट इज कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल्स विद प्रॉब्लम्स आल्सो। ओनली आपको प्रैक्टिकल बताना है, उसके ग्राफ्स डालना है, वो कैलकुलेशंस बताऊंगा मैं मंडे के क्लासेस में, उसको कवर कर लूंगा। बट प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट टू यू, नेक्स्ट वीक आई एम स्टार्टिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल्स। सेकेंड यूनिट बहुत इजी है और कुछ यूनिट्स बहुत इजी है, 2-3 यूनिट्स उसमें परमेबिलिटी है, बहुत कम थ्योरी है, कम प्रॉब्लम्स है और वही पूछते रहता, मार्क्स वेटेज ज्यादा है। फर्स्ट यूनिट बहुत लंबा है, 2 महीने हो गए हमको पढ़ते हुए, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता सेकेंड यूनिट को। तो नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट टाइम देखिए, अब 69-70 बच्चे हो गए, अभी मैं लेने तक अभी 10-15 आ जाते, 85-90 बच्चे आते सिर्फ अटेंडेंस के लिए। व्हाट इज द यूज? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज आप इंटरेस्ट दिखाओ तो समझ में आता। अगर से आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहे हो तो मैं भी अटेंडेंस के लिए आता हूँ, कुछ तो चिल्लाता हूँ फिर चले जाता हूँ। देखिए खुला बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं इतना पढ़ाने के बाद भी आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इतना चिल्ला चिल्ला के इतने नोट्स रेडी करके इतना आपको मोटिवेट करे तो भी आपको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से। टेक डाउन दिस क्वेश्चन फुल्ली या नहीं, तो मैं अपलोड कर रहा हूं डेली, आज इसको अपलोड करूंगा मैं, आज के नोट्स सारे आपके सभी, तो आप उसमें से भी ले सकते हैं। लिंक है ना आपके पास? नहीं है? कुछ प्रॉब्लम्स है तो बोलो। और फर्स्ट चैप्टर के सारे नोट्स, बहुत अच्छे नोट्स है मेरे पास पुराने, वो नोट्स मैं आपको ईमेल कर रहा हूं आज। पूरे क्लास का ईमेल आईडी लेता हूं मैं और उसमें ईमेल करता हूं, या पर्सनली कोई मुझे आपका ईमेल आईडी दिए तो मैं उसको भी ईमेल करता हूं। मुझे कोई उसको वजन लगने वाला है ना पैसे लगने वाला है, लेकिन आप उसको नोट्स को लिख लो, पढ़ाई करो, फिर एक बार रेफर करो। और प्रॉब्लम्स उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे उस नोट्स में, मैं भी कम से कम इस यूनिट में 60-55-60 तक प्रॉब्लम कराया। तो ये सारे प्रॉब्लम, सारे डेरिवेशन, सारे डेफिनेशन एक तरफ अच्छी तरह देख लो और पढ़ाई करो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर से आप ऐसे ही करते गए तो एंड में कुछ भी समझ में नहीं आता। Take down this one. Even if you missed for taking this one, I am uploading all these things. वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं। क्या वीडियोस से तो कुछ, देखिए जब लाइव क्लास नहीं सुनते तो आप वीडियो का सुन के इतना पेशेंस कहाँ है आपके पास? तो कम से कम आप जो मैं अपलोड कर रहा हूँ पीपीटीज वो ले लो, और जो नोट्स ले भेज रहा हूँ वो ले लो, बुक पढ़ो, ये सब पढ़ के तो पढ़ाई तैयारी करो। Take down this one, those who are interested. This is mass of dry soil with paraffin, mass of paraffin, mass of dry soil, वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन निकालो, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल मिलता, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकालो, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स निकालने के बाद E is equal to VV by VS, E is equal to VV by VS।
चलो ठीक है, आप अटेंडेंस के लिए आए तो मुझे भी लेना पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं, सिर्फ अटेंडेंस के लिए करते रहते। ओके, जिसका रोल नंबर मैं ले रहा हूं वो लोग जा सकते, रोल नंबर अटेंडेंस देके। नो नीड ऑफ विवेक मासाळ B26, यू कैन गो। सूरज भांगे 27 B। 41 अमीर मुल्ला 41 और 48 शायद नवीद काजी। अमोल पवार 63, ये सभी बी सेक्शन के ये लोग जा सकते। ए सेक्शन में आइए, भाग्यश्री भोंग 12, हर्षल 48, शीतल धोत्रे 9, आरवी कवड़े 45, 49 मंदार मिसाळ, 55 स्वप्नील काकड़े, 69 दीपक घोलवे, मयूरी सपकल B14 14, जिसका हुआ वो लोग जा सकते प्लीज। B40 प्रजोत, B52 श्रेयस, B1 प्राप्ति, B23 समर्थ, B24 हर्षवर्धन, B25 37 कपिल पाटिल, B24 हो गया, 25 हो गया, 29 सोहम, 31 सूरज, सूरज के बाद देखिए सूरज कहाँ गया। ओके, 31 सूरज, 36 प्रदीक डोके वट एवर इट इज, B36, B53 आकाश नवले, B54 गौरव औसेकर, कपिल पाटिल 37, कट्टप्पा कितने दिन को एक बार आ रहे 61, नीरज रसाले 43, स्वरूप उटगी 67, उसके बाद पूनम मेहत्रे 36A जा सकते जिसका हुआ, 22 स्नेहल राउत, 65 आदित्य अभय, 68 प्रसाद, 46 अजय सावंत, 46 अजय सावंत, 56 A56, उसके बाद भोसले वैष्णवी 1, निशा माने 4, पूजा स्वामी 13, आकांक्षा चौहान 16, श्रद्धा चौहान 17, स्नेहल 18, 19 देशमुख धनाश्री, 25 वैष्णवी, 27 मयूरी, 29 स्नेहल, जिसका नाम ले रहा हूं वो लोग जा सकते। स्नेहल के बाद 34 प्रेरणा, 35 देशमुख दिव्या, 38 नंदिता, गौरव 47, 51 गणेश बागल, 57 सत्यम शिंदे, 64 सुशील खड़े, 13 ऐश्वर्या, इट इज फ्रॉम बी सेक्शन, 13B ऐश्वर्या, 28 सौरभ विठल अदमने, 28B ओके, B2 शीतल भैरवड़े, ओके, शीतल के बाद प्रतिभा बिराजदार 3, 19 सुबह से प्रतीक्षा, 44 स्वप्नील,
8 प्रगति क्षीरसागर, 65 महेश साळुंके, 59 सादिक अली, 22 मनोज, 51 सौरभ, उसके बाद उमेश 56, शिवानी 5, 6 वैष्णवी, 7 अंजलि, 12 प्रियंका, 45 ओमकार मस्के, 46 निखिल, निखिल के बाद आमिर, आमिर 41, केदार जादव, आमिर 41 बी, केदार जादव 41 ए, ओके, देन शिवानी गाय तिड़क 30, यस, जा सकते हो आप लोग सब, जिसका है नहीं हुआ फिर भी चैट बॉक्स में आओ, बाकी सब लोग जाओ। P37 ओवर कपिल, मिल गया आपको अटेंडेंस? एनीबॉडी एल्स? और 2 लोग है। A44, ओके हनुमंत गिवन। B35 कौन है? B35 आई हैव गिवन, B35 वेटिंग में है। A58 ऑलरेडी गिवन है। शीतल A24, ओके, शीतल A24। B11 सोनाली पाटिल, यस सोनाली, मैं तुमको नहीं दिया अटेंडेंस, ओके नाउ आई गिवन यू। सोनाली पाटिल, यस, और यस, एनीबॉडी एल्स? A58 केदार, यस। 56 उमेश, उमेश ऑलरेडी गिवन टू यू। A40 आरवी, A40, तेजस्वी वाज प्रेजेंट नो, देखो ऐसे कुछ छूट जाते। तेजस्वी लैंडवे 3, शी वाज प्रेजेंट, ऐसे भी कभी गलती से रह जाते। एनीबॉडी एल्स? B35 ऑलरेडी गिवन, अनिकेत। नाइन शीतल धोत्रे, अमीरुल्लाह गिवन, आरवी गिवन, हर्षद पाटिल 45 गिवन, मयूरी सपकल गिवन, B35 given, B6 also given, yes। जिसका नाम लिया हूं मैं, प्रजक्ता काले, जस्ट शी इज कमिंग 2, A2, ओके, 2 and 3 present। तो हाँ, मत हाथी में जब मार्क ना मत